Okay, in case of whiteboards, I want you to jump right to the last page. This is page number 6. Okay, so I am going to go with hybridization today. Just for the sake of revision, remember, hybridization was when different shape and or different energy orbitals combine to give us same shape and energy orbitals. All right. So different shapes, maybe they have different shapes, maybe they have different energy. Either of those things or both of things may happen, and they may combine, they may overlap, they may intermix with one another to give us the orbitals that have same shape and energy. All right. So this is hybridization. Now we are actually going to divide hybridization into 3 types: sp3, sp2, and sp. And I'm going to clear all of them on a single page. So I'm going to really go with all 3 types: sp, sp2, and sp, all on the same page. Before I do, let me clear up that a carbon which has the atomic number 6 has this kind of configuration. It has 1s2 complete. The first shell is complete. It has 2 electrons. The second shell is divided in such a way there is 1 electron in 2s. There is 1 electron on in 2px. There is 1 electron in 2py. And then there is 1 electron in 2pz. So this is the configuration we're going to work with, right? So sp3 actually tends to focus on single bonds. sp2 is tend to focus on double bonds. And sp is going to focus for us on how the triple bonds form. Hence, they have different names. As the name suggests, sp3 actually suggests that 1s and 3p orbitals, which have this kind of shapes. I usually draw lines for orientation sake. So this is px, this is py, this is pz. It would give you an idea that how different shapes or orientations or energies of these orbitals would combine. And what they do is that they give us sp3 orbitals. All 4 of them overlap. So these 4 overlap and give us orbitals like this. I hope you remember the irregularly shaped lobe structure with one bigger and one smaller lobe at either ends. Remember that? Yes, sir. Good, good, great. So we call those hybrid orbitals as sp3 orbitals. Remember, these are hybrid orbitals. Since these are formed by the hybridization or intermixing of original orbitals. So these are hybrid orbitals. Okay. Now your book is actually going to name them as modified orbitals. So hybrid orbitals is the common name that we are pretty much used to from the theory. But since you're not going to go with theory and all of those details, you're going to use the word modified orbitals for these ones. So we're going to take an example of methane. Actually, no, let's not take the example of methane. Let's change it and let's take the example of ethane. Now, I hope you remember that the formula of ethane is C2H6, right? So what happens? There is one carbon in center with bonded with another carbon, and both of the carbons are then singly covalently bonded to all of the hydrogen atoms, each carbon to 3 hydrogen atoms
from its structure. I hope you remember that it has this kind of structure. Do you? So it's one of the easiest alkanes. It's pretty easy to understand its structure. Remember, there are two carbons. So for each of the carbons, we have these four sp3 hybrid orbitals. So for the first carbon atom, this is the first hybrid orbital, the second one, the third one, and the fourth one, right? Sorry, my bad. One, two, three, four. One, two, three, four. Bonded to an H. Bonded to an H. Bonded to an H. Like this. So, okay, what I'm trying to make my point over here, that they are all bonded to hydrogen atoms with a head-on overlap or an end-on overlap. And this is the part where carbon-carbon single bond or the sigma bond works. All right. So this gives us the idea that all the angles, bond angles are same, the shapes are same. So we call it tetrahedral in shape. And the angle is 149.5 degrees. Same as what whisper theory told us. All right. So we're going to move on. And I guess that's about it. That's about it with sp3 bonding. And I hope that you understand the structure as I've drawn it. Did you? स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं. देखें, ये 4 थे, तो मैंने 4 लोब्स एक कार्बन के सेट किए हैं, 4 लोब्स ही दूसरी कार्बन के सेट किए हैं, और ये हर लोब एक सिंगल बॉन्ड को शो कर रहा है हर कार्बन एटम के. वो तमाम बॉन्ड्स एंड ऑन या हेड ऑन ओवरलैप के हैं, ठीक है, सिंस तमाम के तमाम बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स है. वो यहाँ पर बॉन्ड होता है तो दोनों कार्बन आपस में लिंक करते हैं, वो बाकी बॉन्ड्स होते हैं तो सारे हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड कर जाते हैं. The structure is tetrahedral. The angles are 109.5 degree. The angles are 109.5 because there are all pairs are bonding pairs. There are no load pairs involved. I hope that makes sense. Are we clear now? Since I've re-explained whatever I've done over here. अब मेरा ख्याल अच्छा समझ आता होगा, right? Yes, sir. Yes. Okay, so let's go with the same thing again. This time we are also going to show you that there are these 4 px, py, sorry, this one's pz, this one's supposed to be py. Okay, but this time there is a small change. 3 of the orbitals intermix or overlap with one another, while the 4th one does not. So sp2, 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 but pz stays as is. This one has this kind of shape, irregularly lobed, irregularly lobed, irregularly lobed. However, this one tends to retain the shape since it does not take part in bonding. Now, this would clearly tell you that all 3 sp2s are hybrid or modified orbitals since they participated in bonding, but pz is not. There. Let's take an example to further clarify what's going to happen and how the non-participation of one orbital is going to result in the formation of a double bond in structure of ethene, the formula for which is C2H4. The structure contains a carbon-carbon double bond
And the rest of the bonds, this is a little bit of a messy structure, but since I don't have enough space and I really want to squash all of it all onto a single page, that's why I'm trying it so hard for this to happen. All right, so there you go. Now think about it. Every carbon in this portion has 3 hybridized or modified orbital, but has 1 non-modified or original atomic orbital pz. It's not a part of hybrid orbitals. It hasn't been modified yet since it does not participate in hybridization. So you would see that the shape or energy of the rest of the 3 is same, but the 4th one isn't the same. How are we going to justify it in the diagram? Let's see how that happens. Now, for each carbon atom, there is 1, there is 2, there is 3, and for each carbon atom, there is 1, then there is 2, then there is 3. This one to a hydrogen by head-on bonding, this one to a hydrogen by a head-on bonding, into a hydrogen, end-on bonding, hydrogen, head-on bonding. This is the carbon-carbon sigma bond. Okay. Now, we are done with 3 hybrid orbitals on one carbon, 3 hybrid orbitals on the other. But we are still left with the pz orbital. So this is the pz. This is the pz, right? And it actually comes closer because of the sigma bond. And what it does is that it makes a bond sideways. When it makes a bond sideways, it forms a pi bond, which is formed by the attraction of electrons on top and at bottom of the sigma bonds, right? And that's how a pi bond is formed. Remember, VBT, we discussed a sideways overlap of 2 pi of a structure with 2 electrons, one on top, one at bottom. We call it as a whole as a pi bond. There are no 2 pi bonds. Actually, 1 pi bond is shown by a top link as well as a bottom link. Remember, a pi bond was shown after its formation as a lip-based structure. And remember that I explained you, it has an upper lip, which is the upper pi bond portion of the pi bond, and a lower lip, which is the lower portion of a pi bond. So that's how it's formed. So this one is a double bond. Now, this gives us a triangular or trigonal structure, right? This angle is less than 120 degree, with these angles greater than 120 degree. Why is this angle smaller than 120 degree? This is less than 120 degree because there are single bonds being repelled by double bonds. So remember, and let me change my color to explain that. This is greater than 120 degree because there are 4 electrons over here that are repelling these 2 electrons over here or over here. So this one is then less than 120 degree. Make sense? Yes, sir. I hope you don't have any confusion about these angles. If you do, please ask me now. If not, then we're definitely going to move on to SP. All right. Sir, why is it less than 120? I wasn't able to hear you. Can you repeat? Sir, why is the angle less than 120? Okay. यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जहां कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है
वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्यों? सिंगल बॉन्ड है। जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एज अ टोटल। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुश करेंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे। जब ज्यादा रिपेल करेंगे तो वो वाला एंगल 120 से बढ़ जाएगा। जब दोनों साइड्स पे 120 से बड़ा एंगल होगा तो जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का एंगल है वो क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली 120 से छोटा हो जाएगा। ओके सर। सिंस रिमेंबर, यहाँ पर जो एंगल्स थे वो 3 डायमेंशनल सॉर्ट के नहीं बल्कि 2 डायमेंशनल सॉर्ट के ट्राइंगल बेस्ड एंगल्स थे। तो अगर आप दो साइड से उसे 120 से बड़ा रखते हैं तो थर्ड साइड इज बाउंड टू बी लेस देन 120 in order to balance the whole 360 degree thing। ठीक है ना? ये भी 120 से बड़ा है, ये भी 120 से बड़ा है, ठीक है, ये वाला एंगल भी 120 से बड़ा है। तो ऑफ कोर्स आपके पास ये वाला एंगल 120 से छोटा होगा ताकि वो 360 वाला सिस्टम बैलेंस हो जाए। लेट्स से ये 120 नहीं है, ये 122 है, ये भी 120 नहीं है, ये 122 है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स नॉट एक्चुअली 122 degrees, ठीक है? So if both of these are 122 degrees, this is bound to be around 116 degrees to give us the idea that this is going to be smaller since there is more repulsion on both sides। रिमेंबर, हमने कहा था कि हम डबल बॉन्ड्स को जब रिपल्शंस में डिस्कस करते हैं तो सिंगल बॉन्ड की ही तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में डबल बॉन्ड की रिपल्शन सिंगल बॉन्ड से ग्रेटर होती है। यानी फाइंड आउट करते हुए हमने उसे सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करके उसे जरूर स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाना है और रिपल्शंस काउंट जरूर करनी है। लेकिन रिपल्शंस काउंट करते वक्त ये ख्याल रखना है कि उन रिपल्शंस की अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा होगी तो ऑफ कोर्स काउंटिंग में तो आएंगे, ठीक है, और उसकी वजह से हम उसका एंगल भी निकाल लेंगे, ठीक। और लेकिन रिपल्शंस की अमाउंट बड़ी होने की वजह से वो और उससे जॉइनिंग एंगल्स जो होंगे वो उस रिपल्शन से इफेक्ट होकर अपने एक्चुअल एंगल से बड़े या छोटे हो जाएंगे। तो ये वाले जो होते हैं ये बड़े हो जाते हैं, ये वाला भी बड़ा हो जाता है, तो ऑफ कोर्स ये वाला छोटा हो जाएगा। ओके सर। अली, आपको भी ये बात समझ आती है? जी सर। ओके। आपकी बुक एग्जैक्ट एंगल्स कोट नहीं करती है, लेकिन एक जगह पर थोड़ा सा आगे जाकर अभी वो पॉइंट आना है, वो एक जगह पर 117 के करीब एंगल कोट करेगी, ठीक है। अभी थीम का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है डिटेल में, तो वो भी एग्जैक्ट नहीं होता, वो अबाउट होता है। तो हम फिर स्टूडेंट्स को आगे वही पढ़ा देते हैं। आई कम टू दिस एंगल अगेन, डोंट वरी, I'm discussing one again since book is going to do that too, ठीक? But that time I'll be a little more specific than I am right now. Okay? So I'll discuss it again. It's just that अभी तो हम background theory पढ़ रहे हैं, ठीक है? उस बैकग्राउंड थ्योरी से एक्चुअली कंपाउंड्स पर क्या अफेक्ट होता है या ओवरऑल शेप्स या एंगल्स क्या बनते हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट ये ट्रायंगल या ट्रायंगुलर जो है ये भी दोबारा डिस्कस होगा। सो वेट फॉर इट। अभी तो मैं आपको सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर ये समझा रहा हूँ, अभी बुक भी इन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिकेटर करेगी। सो कुछ रह भी गया हम इसे दोबारा क्लियर करेंगे। कमिंग बैक टू द एसपी स्टफ, okay, this time it's going to be pretty simple since S and px, the simpler ones, are gonna py pz, and now this time sp, irregularly shaped lobe, sp, irregularly shaped lobe, since these two participated, py in the similar way stays as is, pz, since it does not participate as well, as it is। अब सिर्फ दो ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है, एक एस ने एक पी ने। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड स्ट्रक्चर, एथाइन। This is C2H2, and I hope you remember it was a carbon-carbon triple bond with one hydrogen on one side and one on the other। ये इथाइन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। Sorry, I have very less space, that's why I'm bound to draw it a little bit messy। Okay, so what's going to happen? It's pretty easy. Every carbon would have, और मैं जानबूझ के दरमियान वाला लोग थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, इनफैक्ट इसको भी बड़ा कर लेते हैं।
ये जानबूझ के मैंने थोड़े से लंबे और बड़े बनाए हैं ताकि मैंने थोड़ा डिस्टेंट कर सकूं एक्चुअल डायग्राम से। ये एक्चुअल डायग्राम के अंदर अभी बहुत सारे पोर्शंस ऐसे आने हैं जो आपको दिखाए जा सकें। सो एक कार्बन की एक लोब इस तरफ ये sp2 है, एक लोब इस तरफ ये sp2 है, और उसी तरह दूसरा कार्बन भी। ये हेड ऑन ओवरलैप से आपके पास सिग्मा बॉन्ड दोनों कार्बन एटम्स का बन गया। रिमेंबर, मैंने बीबीटी में लास्ट सिटिंग में पढ़ाया था कि पाई बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए पहले सिग्मा बॉन्ड्स बने होना जरूरी होते हैं, सिंस सिग्मा बॉन्ड्स ब्रिंग द एटम्स क्लोजर इनफ फॉर अ साइडवेज ओवरलैप दैट इज डन बाय पाई बॉन्ड्स। तो एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे एक y पी वाई और पी वाई होगा, ये उसका साइडवेज ओवरलैप होगा टॉप से, ये उसका साइडवेज ओवरलैप होगा बॉटम से। तो एक पाई बॉन्ड यहाँ और एक पाई बॉन्ड का पार्ट यहाँ, पाई बॉन्ड ऊपर नीचे होने से एक कंप्लीट पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, नॉट जस्ट दैट, रिमेंबर इसमें पीजी भी थे जो जानबूझ के मैं अब और बड़े बड़े ड्रॉ करने वाला हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि ये पाई बॉन्ड्स पे आपको अच्छे तरीके से ड्रॉ करके समझा सकूं। एंड देयर यू गो, another sideways overlap or another pi bond. So what happens, आपके पास ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो होता है वो कहलाता है लीनियर, सिंगल लाइन में एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और इसका जो एंगल होता है वो सिंपली 180 डिग्री का होता है, ये एंगल यूं 180 डिग्री का बन जाता है। ठीक, ओके, so this gives us one more idea which I'm going to write on the top. This means that this one is composed of one sigma bond, this one is composed of one sigma and one pi bond, and this one is composed of one sigma, one pi, and one another pi. All right, which means two pi's basically. You can have two pi's written, or you can simply state them separately, so just in order to make sure that where the pi's lie. ठीक, याद रखिए सिग्मा तब होता है जब इस तरह का एंड ऑन ओवरलैप होता है, ये तीनों में एग्जिस्ट करता है ये, और पाई तब होता है जब हमारे पास यूं ये वाला ओवरलैप होता है और वो इसमें ज्यादा है। ये ठीक है, मैंने इसे सर्कल भी कर दिया। क्लियर इनफ? Yes, sir. Yes, sir. Good, good. So I'm going to close the whiteboard and I'm going to get back to the book. और ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है इसी को हम पिक करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, और याद रखिए sp3 अल्केन्स के अंदर शो होता है, sp2 अल्कीन्स के अंदर शो होता है, मैंने एग्जांपल भी तीन की दी है, और sp अल्काइंस के अंदर शो हो रहा है sp। ठीक है, तो तीनों टाइप की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक्चुअली अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो इनमें शो होती है। इसका ये मतलब नहीं है ये और कहीं शो नहीं हो रहा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी शो हो रहा है, लेकिन आगे चलते हैं एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये तो एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए मैंने आपको तीनों शो कर दिए एक साथ एक ही पेज पर समझाने के लिए। So for a further discussion, let's close the whiteboard, open up the book and start from the beginning of 4.5. ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब दो नॉन मेटल एटम्स कंबाइन करते हैं। हर एटम जो कंबाइन कर रहा होता है उसके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जिसमें एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो शेयरिंग के लिए शेयर करता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो एक कंबाइंड ऑर्बिटल फॉर्म होता है जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड होते हैं वो आ जाते हैं। हम इस कंबाइंड ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अमाउंट ऑफ ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितना वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा ओवरलैप करेंगे उतना ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। ठीक है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो हाइड्रोजन एटम्स की जब ओवरलैप करते हैं तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और ये एस और एस से बनने वाला एक
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर हमें नजर आता है, ठीक है, ये भी H था, ठीक है, ये भी H बना, और हमारे पास जो H का ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये उसको डिपेक्ट कर रहा है, बेसिकली अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये डिपेक्ट कर रहा है। ठीक, बताना हम क्या चाहते हैं, दो तीन बातें। जितना ओवरलैप ग्रेटर होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इस बात का क्या मतलब है? sp3 का ओवरलैप अगर आपको याद हो तो बेसिकली सिर्फ इतना था, ये sp3 का ओवरलैप था। sp2 का अगर ओवरलैप आपको याद हो तो हमारे पास यहां पर भी ओवरलैप आता था, ठीक है, और बेसिकली हमारे पास इसकी वजह से एक ओवरलैप यहाँ और यहाँ भी आता था, तो ओवरलैप काफी बड़ा हो जाता था। बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास इसमें sp का ओवरलैप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मैंने अभी अभी जो sp का ओवरलैप ड्रॉ किया था उसमें ये वाला ओवरलैप भी था, फिर इनकी एग्जिस्टेंस की वजह से ये वाला ओवरलैप टॉप और बॉटम पे भी एग्जिस्ट करता था, फिर इनकी एग्जिस्टेंस की वजह से जी की एक ये वाला ओवरलैप भी टॉप और बॉटम पे एग्जिस्ट करता था, तो इसका ओवरलैप पिछले दोनों से ज्यादा है। सो ऑफ कोर्स इसमें ओवरलैप ज्यादा बड़ा है, तो ये सब उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। दैट्स व्हाई ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल, एंड डबल इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये पॉइंट अब समझ आ गया। अब मैं एक एक पॉइंट, चूंकि मैंने हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीटली एक्सप्लेन या ड्रॉ कर दी है, तो मैं उस ड्राइंग को रेफर करके बड़ी आसानी से समझा सकता हूँ, जो कि पिछली मर्तबा नहीं थी, क्योंकि पिछली मर्तबा में सिर्फ एक बीबीटी के ओवरऑल आइडिया से चल रहा था, मैंने भी हाइब्रिडाइजेशन की बातें नहीं क्लियर की। ये जो मिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जब आपके पास s3p ऑर्बिटल से मिलता है तो हम उसे sp3 कहते हैं, s2p ऑर्बिटल से मिलता है तो हम उसे sp2 कहते हैं, और s जब एक सिंगल p ऑर्बिटल से मिलता है तो हम उसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब याद रखिए, यहाँ पे आपकी वो खुद इन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहती है, आगे चल के हाइब्रिड को वो मॉडिफाइड कहना शुरू कर देगी, तो वो खास बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी आर यूजिंग टू डिफरेंट वर्ड्स फॉर द सेम थिंग। याद रखिए कि सिग्मा बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब आपके पास एंड-ऑन ओवरलैप होता है, वो ये भी है। Actually, let's just change the color in order to better explain it. वो ये वाला भी है, वो ये वाला भी सिग्मा है, और ये वाला भी सिग्मा है। और पाई बॉन्ड आपके पास, या बॉन्ड्स तब फॉर्म होते हैं जब साइडवेज ओवरलैप होता है। ये एक पूरा साइडवेज ओवरलैप है, ये ऊपर भी हुआ नीचे भी हुआ, तो आपके पास एक पाई बॉन्ड बना, ठीक है, और ये ऊपर भी दो हुए और नीचे भी दो हुए, तो आपके पास ये दो पाई बॉन्ड्स बन गए। तो आपके पास डबल बॉन्ड में एक, और जबकि ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम फर्दर टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये सिग्मा या पाई सब के सब कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर इनफ? we're actually taking a deeper dive into the theory. So that's why the covalent bonds or their type, single, double, or triple, is further explained by the type of bonds they form by either kind of overlapping, be that end-on overlapping or sideways overlapping, sigmas and pi's, respectively. Make sense? Yes, sir. Ali, you too? Yes, sir. Good, good. So let's move on. The p atomic orbitals can also overlap linearly and on, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं सिंगल बॉन्ड्स में, तो ये समटाइम्स मॉडिफाई हो जाते हैं, और इनके अंदर थोड़ा सा s ऑर्बिटल का भी करेक्टर आ जाता है। ये हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। ऑर्बिटल स्लाइटली ऑल्टर्ड हो जाते हैं शेप में, इरेगुलरली लोब्ड, और उसका एक लोब बड़ा हो जाता है। ये जो प्रोसेस है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जो एक s या तीन p मिलना, इसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इन हाइब्रिड्स को हम sp3 हाइब्रिड्स कहते हैं। sp3 हाइब्रिड्स में से s का 1/4 कैरेक्टर होता है और p का 3/4 कैरेक्टर होता है। सो आई थिंक ये मैंने लास्ट टाइम भी बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था
कि अगर आप इसे यूं कंसिडर कर रहे हैं और ये तीनों मिले हैं तो ये 3/4 और ये ओवरऑल 1/4 करेक्टर है। सिंस द टोटल काउंट इज 4, इसका 1 करेक्टर होगा और इसके 3 करेक्टर होंगे, क्योंकि पीस के जो एनर्जीज होती हैं या जो शेप्स होती हैं सेम होती हैं। बस ये होता है कि ये एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड होता है, ये वाई पे ओरिएंटेड होता है, ये जेड पे ओरिएंटेड होता है। लोब्स के अंदर फर्क नहीं होता। सो 1/4 या 3/4 ये याद रखिए, मैंने पिछली दफा भी एक्सप्लेन किया था, हम इसे 25% या 75% एस और पी करेक्टर कहते हैं। ठीक है, सही। इसी तरह जब आप एक एस और 3 पी मिलाएंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 1/3, सॉरी 1/3 और 2/3, और हम इसे क्या कहेंगे, 33% एस और 66 कह लें, 67 कह लें, जो भी कह लें, ठीक है, परसेंट पी। ये है sp3, ये है sp2, और फाइनली sp में क्या होगा, एक s, एक p, 1/2, 1/2 क्या होगा, 50% s करेक्टर, 50% p करेक्टर, और ये sp। ओके, उसने सारा कुछ यहाँ नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ sp3 लिखा है। sp2 और sp के बारे में पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चूंकि उसने वो चीज यहाँ नहीं लिखी और बुक जानबूझ के इस तरह की चीजें छोड़ती है ताकि स्टूडेंट्स इसे फिगर आउट करने की कोशिश करें खुद से, बस। प्लस इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। आई गेस ये तो आप लोगों ने भी बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर दिया होगा, जहां पर भी 33 या 50 या 66 आया है, कर लिया ना। जी जी सर। सर। ओके गुड। तो sp2 हाई ऑर्बिटल्स या sp ऑर्बिटल्स उसने बताया हुआ है। एंड ऑन के लिए सिग्मा बॉन्ड है, साइडवेज के लिए पाई बॉन्ड्स हैं। एंड ऑन की एग्जांपल्स में उसने एक मॉडिफाइड और एक एस हाइड्रोजन का C&H का सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, या दो मॉडिफाइड कार्बन कार्बन के आपस में मिलके एक टॉफी शेप स्ट्रक्चर, वो उसने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए भी बताया। हर तरह का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये भी समझा चुका हूँ, मैं ये भी समझा चुका हूँ, और मैंने लिटरली ऐसे ही ड्रॉप किए हैं अपने व्हाइट बोर्ड में। कैन वी मूव ऑन? यस सर। यस सर। Okay, moving on. So, electron density sigma bond की symmetrical होती है about a line joining the nuclei of the atom. Electron density क्या होगी, बिल्कुल symmetrical होगी, क्योंकि वो लाइन जो एटम्स को ज्वाइन करती है वो आपस में स्ट्रेट क्यों होती है। बॉन्ड्स जो कि साइडवेज ओवरलैप से होते हैं उन्हें हम पाई बॉन्ड्स कहते हैं। पाई बॉन्ड सिमेट्रिकल नहीं होता अपने एक्सेस के हिसाब से जो न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो फिगर 4.24 आगे चल के आपको दिखाएगी कि पाई बॉन्ड्स कैसे साइडवेज ओवरलैप होते हैं, और हम बाकायदा सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे या दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ड्रॉ करेंगे, वन अराइजिंग फ्रॉम ईच लोब ऑफ पी ऑर्बिटल्स। देखें और से देखें, वो मैं पहले करता रहा हूं। नोटिस करें कि ये आपके पास एक पूरा पी ऑर्बिटल है, ये सेंट्रल न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं, और आप नोटिस करें कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या तो उसके ऊपर है या उसके नीचे है। हत्ता कि ये जो ब्लैक पॉइंट्स होते हैं ये शो करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते। ग्रीन अपर लिप और ग्रीन लोअर लिप, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए लिप शेप के लिए, वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक, सिग्मा बॉन्ड सारे का सारा यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करता था। पाई बॉन्ड इसके ऊपर या इससे नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो कर रहा है, वहां पर नहीं। और ये बनाने वाले की खूबी है, मैं इसे अल्लाह ताला की खूबी का जानता हूं। देखें, सिग्मा बॉन्ड सारे का सारा जिस लाइन पर है उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर गया। ये सारा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन है।
अब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं एक दूसरे को और एक ही जगह पे ढेर सारे एग्जिस्ट करने की कोशिश करेंगे तो बात खराब हो जाएगी। मतलब पहले साइंटिस्ट यूं डबल बॉन्ड यूं ड्रॉ कर देते थे ना, तो एक बहुत कॉमन सवाल था कि ये इलेक्ट्रॉन, ये एक डॉट और ये एक क्रॉस और ये एक डॉट, ये एक क्रॉस, ये इतने सारे इकट्ठे एक जगह पे कैसे आ गए? ये क्यों नहीं रिपेल करते एक दूसरे को? डबल बॉन्ड क्यों नहीं आसानी से टूट फूट जाता? क्यों एग्जिस्ट करता है दुनिया में डबल बॉन्ड इतने ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड हम डेली इसमें सांस ले के साथ निकाल रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के दोनों तरफ दो, एक डबल बॉन्ड एक तरफ, एक डबल बॉन्ड एक तरफ एग्जिस्ट करता है। चार इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे कैसे एग्जिस्ट करते हैं? अब ये हमें थ्योरी समझाती है कि वो चार एक जगह नहीं एग्जिस्ट करते, दो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और बाकी जो ऊपर की बॉन्डिंग थी यहाँ, या जो नीचे की आपके पास पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर था वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये चारों तो एक जगह पे स्पेस में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे। तो बजाय कि जब हम ये ड्रॉ करें और बेवकूफों की तरह सोच लें they are lying pretty close to one another, which they actually are because they are very simpler structure. But even this very, very extremely small space has been defined for electrons separately, those who are in sigma or those who are in pi, उनके लिए भी बड़ी अच्छी स्पेसेस, टॉप बॉटम साइड सेंटर सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए वो उस तरह से रिपेल भी नहीं कर रहे जिस तरह से हम सोच रहे थे। So all of them in one plane is not a true piece of imagination or information. इस वजह से वो क्वेश्चन बार बार एग्जिस्ट करता था। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और बाकी ऊपर नीचे के हिसाब से सेट हुआ है, which actually gives the picture of the creator कि उसने इतनी सी छोटी स्पेस में भी इतनी एक्सट्रीम सिमेट्री रख दी कि इतनी छोटी स्पेस में भी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकेंगे क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी जगह होगी। सो क्या होता है? अली आपने मेरे साथ ये बात पहले नहीं पढ़ी, लाइबा आपने मेरे साथ पढ़ी है। और लाइबा जब भी हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिटल में पुट करने की बात की है, ठीक है ना, हमने हमेशा बहन भाइयों को डिस्कस किया है जिन्हें घर में बेडरूम्स मिलने होते हैं, ठीक है। और हमने हमेशा मजाक के तौर पे, अली मैं आपको भी ये बात साथ साथ समझाना चाह रहा हूँ, हमने हमेशा मजाक के तौर पे ये बात की है कि अगर तीन सिबलिंग्स हैं और अगर उन्हें तीन अलग अलग बेडरूम्स मिल जाएंगे और हर किसी को अलग बेडरूम में अकेले अकेले रहना होगा तो सारे बहुत खुशी से रहेंगे। और एक्चुअली दैट्स ट्रू। लेट्स सपोज यू आर थ्री सिबलिंग्स, ठीक है, एंड यू हैव अ हाउस व्हिच हैज अ मास्टर बेडरूम which has been occupied by your parents, and then there are three more bedrooms and every sibling has their own bedroom, they'll be all happy, ठीक है। सिंस ये वो चीज नहीं है, ये वो एग्जाम्पल नहीं है, तो क्या होता है जब आप दो सिबलिंग्स को एक ही बेडरूम में घुसाने लगते हैं, ठीक है, तो आपको पता होता है कि यहाँ पर अब लड़ाई का चांस है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? दे डोंट गिव देम अ बेड टू शेयर कि वो आपस में लड़ लड़ के पागल ना हो जाए। एज फनी एज इट मे साउंड, दिस माइट बी ट्रू। So what they usually do is that give them two separate beds, which you might have seen in a lot of movies or in actual houses. आपने एक्सपीरियंस किया होगा, उनको अलग अलग अपने अपने बेड्स दे दिए जाते हैं even when they are sharing a room. The same thing happens in shared dorms, in hostels, in hotels, in other places, ठीक है। So that bed is actually trying to give you in the same room a set of space that you can have for yourself. This is coming from our own atoms, electrons. Actually ये आइडिया सेपरेट बेड्स का क्रिएटर ने ऑलरेडी दिया हुआ है इतनी छोटी स्पेस के अंदर भी, ठीक है। बात समझ आती है? Siblings examples may be fun, but it's going to give you a very good idea how to place electrons in closer spaces or how to work out their repulsions, even if that comes as a theory question or an MCQ question. I hope you have both taken up my point, right? Yes, sir. Good. अब पेट्रन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उठाते हैं। और मैंने जानबूझ के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में मेथेन से शुरू करने लगा था, मैंने जानबूझ के एथेन एक्सप्लेन किया सिंस आई वाज रिमाइंडेड दैट योर बुक कंटेन्स एथेन, तो एथेन बताते हैं। जब आगे एथेन आएगा तो फिर वो भी आपको आसान लगेगा, तो मैं मेथेन करते करते एथेन कर दिया, ठीक है। तो टेक अ लुक एट दिस एथेन, मैं ये पहले ड्रॉ कर चुका हूँ। आपके पास ऑल बॉन्ड्स लीनियर ओवरलैप से हैं, एंड ऑन ओवरलैप हम इसे कह रहे हैं, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। नोटिस करें कि उसने सारे सिग्मा बॉन्ड्स को उस तरह से कर दिया। देखें, अब गौर से देखें, ये एक
इरेगुलर शेप लोब उसने वहां पर ड्रॉ किया है जहां पर आपके पास ये वाले एंड ऑन ओवरलैप आता है, और जहां पर एक ये वाला एंड ऑन ओवरलैप आता है, ठीक है ना, ये वाला, ये मॉडिफाइड विद मॉडिफाइड, जो कि बाद में एक्चुअली एक टॉफी स्ट्रक्चर बना देता है, उसने वो टॉफी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बीच में। कि मैं अपनी ड्राइंग में तो ये बात इतनी अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं कर सकता था। 2 points, I have poor drawing skills and book is showing it in a much better way. So both of the things combined, आपको अंदाजा होता होगा कि उन्होंने एक irregular shape lobe since S or modified P, या both modified P's and a toffee shaped structure, दोनों एक ही स्ट्रक्चर के अंदर बड़ी अच्छी तरह से क्लियर किए हुए हैं। दोनों सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दोनों ही सिग्मा बॉन्ड्स, लेकिन चूंकि आपके पास डिफरेंट शेप और एनर्जी के पार्टिकल सॉरी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट्स भी डिफरेंट है। ये दो मॉडिफाइड हैं, ये मॉडिफाइड विद एन एस है, और आप नोटिस करेंगे कि हर जगह मॉडिफाइड विद एन एस और दो मॉडिफाइड का डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया हुआ है। द एंगल्स 109.5, जोन सा मर्जी करें, ये एच सी सी करें, सी एच सी करें, ठीक है, एच सी एच करें, सारे ही बनते हैं, ठीक है। ये जो ड्रॉ किए हुए एंगल्स ना, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं बुक में। एमसीक्यू में ये लिखा होगा एच सी सी एंगल, ये है एच सी सी, ये भी 1.109.5 है। ये एंगल कितना अच्छा लग रहा है, ये एच सी एच है, तो आपके पास एमसीक्यू में ये एच सी एच लिखा होगा। याद रखें, ऐसे किसी भी तरीके से हम लिख लें, ये 109.5 ही रहेगा। एच सी एच लिख लें, एच सी सी लिख लें, सी सी एच लिख लें, इसे उल्टा कर लें, सी सी एच कर लें, बेशक बात वही है, 109.5 ही है। सो कंफ्यूज नहीं होना है अगर उसे थोड़ा सा घुमा दें या एंगल चेंज करके लिखते एमसीक्यू में, which they are going to do. They are masters of deception and manipulation of questions. वहाँ टीम बैठी होती है ये काम करने के लिए, they get paid for manipulation of questions, hence the advanced level papers, ठीक है। Which brings me to a point, please get started with MCQ papers, ठीक है। Don't go for any of the topicals you have, don't go for anywhere else. Let's start with save my exams, जो मैं already आपको provide कर चुका हूँ। Why save my exams? उसकी मार्किंग स्कीम में उसकी बाकायदा justification दी होगी। So every time you're going to answer an MCQ and check yourself whether you're right or you're wrong, you are going to get a complete justification for it. वो बहुत अच्छा रहेगा. It would be a very quick and good practice, since you'll get to know what your mistakes are and why an option is correct and why a wrong option is wrong. ठीक है, दोनों के पास है ना वो फोल्डर, वो टॉपिकल्स? जी Good. Get started with them. Start with the very first chapter, doesn't matter, और आहिस्ता stories chapter तक आए, ठीक है। आहिस्ता doesn't mean too slow, but as best of the pace as you can. Especially it's good to do them on our off days. जब हमारे ट्यूशन के days नहीं होते, उन days पर जरूर करें. You'll stay in touch with the studies, ठीक है। Are we clear with Ethene? यस सर Are we clear with the type of manipulations he can do to the question to ask you different MCQs and theory questions? यस सर Okay, यहाँ पर structure का word नहीं mention किया हुआ. Do you remember from my diagram? It's nothing in these lines have been explaining that it's tetrahedral in structure. That's why I wrote that on my diagram. So you can do that to your book. Book में यहाँ कहीं लिख लें कि वो tetrahedral है. Since इसकी सारी explanation में एक point यहाँ पर नहीं है, वो के पीछे किया हुआ है, लेकिन बेहतर है कि यहाँ पर भी लिखें, ताकि कहीं पे भी कोई भी piece of information interconnect करने से ना रहे, ठीक है। Tetrahedral structure. 109.5 actually brings us to a tetrahedral structure. ठीक, which takes me to the second example, ethene. Ethene is C2H4. There is a carbon-carbon double bond right in the center. And you are pretty familiar with the way of writing this, कि हम carbon-carbon double bond को इस तरह और इस तरह लिख रहे होते हैं for its structures.
हर कार्बन एटम 3 अपने 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे से सिग्मा बॉन्ड्स के लिए यूज कर रहा होता है, मॉडिफाइड ऑर्बिटल के लिए, और एक जो वाहिद मॉडिफाइड ऑर्बिटल बच जाता है सिंस इट्स sp2, वो आपके पास पाई बॉन्डिंग के लिए साइडवेज ओवरलैप करता है दूसरे कार्बन के साथ. So there is a pi bond between both the carbon atoms. अगली डायग्राम पे चलते हैं, हमें समझ आए ये बनता कैसे है. ठीक है, there you go. उसने सारे सिग्मा बॉन्ड्स उसने प्रॉपरली सिंगल बॉन्ड से शो कर दिया, और अकेला जो पाई बॉन्ड बचता है वो p ऑर्बिटल्स, जो कि हमारे पास मॉडिफिकेशन में आए नहीं. नोटिस उसने p ऑर्बिटल्स लिखा हुआ है, मॉडिफाइड ऑर्बिटल्स नहीं लिखा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं लिखा. Why? It never took participation in hybridization. So the p orbitals, and again the upper and the lower lip of electron density are shown properly. अगर ऊपर वाली डायग्राम से नहीं समझ आता, नो प्रॉब्लम. इसने 120 डिग्री शो किया हुआ है, ये भी 120 डिग्री की एक्सप्लेनेशन भी आएगी. डोंट जस्ट सिंपली कंसीडर इट 120. आगे हमने पढ़ना है कि वो 120 नहीं है, और क्यों नहीं है वो भी लिखा होगा. ठीक है, लो सिग्मा बॉन्ड की जो डेंसिटी है उसे रेड में शो किया हुआ है, पाई बॉन्ड्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है उन्हें ग्रीन में शो किया हुआ है, विच मींस सेंटर में कोई पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो या तो इससे ऊपर होता है या इससे नीचे होता है, जिसकी वजह से वो जरा सा दूर होता है. और वो भी इसने इतनी खूबी से डायग्राम बनाई हुई है कि जहां पर डार्क ग्रीन कलर आता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जहां पर लाइट कलर है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं है. सिंस दिस द रिपल्शन एरिया, इलेक्ट्रॉन आएगा रिपल हो जाएगा. ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से शो हो सकता है, लिहाजा इसका जो सारे एंगल्स का सम है वो सर्कल के 360 डिग्री को पूरा करेगा. हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि HCH बॉन्ड जो है वो 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के 3 एरियाज नहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड्स तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड जहां आता है वो वहां पे रिपल्शन ज्यादा हो जाती है. हमारे पास ये वाला एंगल 120 से छोटा हो जाएगा. ठीक है, और वो छोटा कितना होता है, 170 के करीब. वो 717 के करीब होता है, ये 120 से बड़े होते हैं, तो रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमाइज होती हैं, वरना शायद रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमाइज ना होती. याद रखिए हमने वेस्पर थ्योरी में ही पढ़ा था कि अगर रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमाइज नहीं होंगी, स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी. और स्ट्रक्चर स्टेबल है, ये गैस एग्जिस्ट करती है. Why? Because the repulsive forces has been minimized. How the repulsive forces has been minimized? By a small change in angle. 120 से 117 पे गया है, वो एक 3 डिग्री का माइन्यूट सा डिफरेंस, इवन इतने छोटे लेवल पर भी, ठीक है, हमारे पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबल किया हुआ है. So I always, when it comes to chemistry, praise my Allah for His symmetry. क्या कमाल की चीज बनाई है. I am amazed. I don't know whether you're amazed or not. I am. I truly am to my core. Okay. Triple bonds. Nitrogen, nitrogen triple bonds. Cyanide triple bonds. Ethyne triple bonds. Sub triple bonds. Triple bonds में आपके पास 2 pi और 1 sigma bond होगा. हाइड्रोजन साइनाइड की एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, 1 पाई बॉन्ड जो होता है फॉर्म होता है हाइड्रोजन और कार्बन एटम में. ठीक है, ये ओवरलैप है sp कार्बन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का 1s के साथ, उसने शो किया हुआ है. सेकंड जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन और नाइट्रोजन का है, ये भी sp कार्बन हाइब्रिड ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है कि p ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन एटम पे जो बचे हुए हैं, और उसके अलावा जो आपके पास p ऑर्बिटल्स कार्बन पे बचे हुए हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ साइडवेज ओवरलैप करते हैं. तो नोटिस करें कि जो साइडवेज ओवरलैप ऊपर उसने यूं यूं इस तरह से यूं करके दिखाया हुआ है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, उसने उसी तरह का एक मिलता जुलता डायग्राम, ठीक है, यहां पर बनाया हुआ है. इट्स बेसिकली मोर लाइक एनकैप्सुलेटेड सीड स्ट्रक्चर. ऐसे सीड्स या हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है. बहुत सारे लोग इसे पीनट के स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करते हैं, सिंस पीनट जो होता है वो भी हमारे पास कुछ इस तरह का ही स्ट्रक्चर शो कर रहा होता है. सो या इट्स अ वेरी क्लोज सिमिलैरिटी, आई एग्री विद दैट. तो आपके पास पाई बॉन्ड 1 1 2 2, उसने नोटिस करें कि एक पाई बॉन्ड जो है 2 भी है, वो दो साइड से शो किया जाता है बाकायदा, या 1 भी दो साइड से शो किया जाता है कि वो किस तरह से कंबाइन हो रहा है.
नई बुक में हमारे पास ये वाली एग्जांपल HCN के लिए डिस्कस की गई है, पुरानी बुक्स में आपको यही एग्जांपल इथाइन के लिए मिलेगी। वेदर HCN और इथाइन, इट इज प्रीटी मच द सेम थिंग। वो एक H का डिफरेंस होता है हमारे पास, लेकिन बाकी एक ही चीज है। इथाइन में ये होता है कि सारे मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और हमारे पास HCN में हम फिर उसे स्लाइटली चेंज कर देते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन का नहीं, कार्बन नाइट्रोजन का केस आ जाता है बस, और कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आती है। जी सर। इसमें मैंने इथाइन किया है ताकि इथाइन भी क्लियर हो जाए, और बुक में जो आपके पास साइनाइड है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक। यहाँ पर ये पूरा हो जाता है। अच्छा, इस केस में ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये भी एक्चुअली लीनियर होता है हमारे पास, और 180 डिग्री का एंगल बनता है हमारे पास। यहाँ पर चूंकि HCN है, इसलिए उसने इस चीज को इस तरह से कोट नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप नाइट्रोजन की एग्जांपल लें या आप इथाइन की एग्जांपल लें, दोनों के केसेस में आपके पास जो एग्जांपल्स होती हैं वो आपको शेप लीनियर, ठीक है, और एंगल 180 डिग्री का देती हैं। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, मैं इधर बड़ा बड़ा करके ड्रॉ करना चाहूंगा, ठीक है, ये सारे का सारा एक जैसा 180 डिग्री, क्योंकि जितनी इसकी रिपल्शन इस तरफ है उतनी ही इसकी रिपल्शन इस तरफ है, जितनी इसकी इस तरफ है उतनी ही इसकी इस तरफ है, तो एज अ होल 180 डिग्री या लीनियर। ठीक है, opposite sides show similar repulsive forces winding up the structure in a linear shape and a 180 degree angle। ठीक, जैसा कि इसने यहाँ पर जानबूझ के तीन तीन एग्जाम्पल्स दी हैं, इसका पर्पस ये है कि कहीं से भी इतनी ही सिंपलर एग्जाम्पल उठाकर आपका पास्ट पेपर में क्वेश्चन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड सेम एंगल्स के साथ सेम स्ट्रक्चर्स के साथ डिस्कस किया जा सकता है।